بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان। आसमान को बुलंद किया और मेज़ान अदल कायम कर दी कि उस मेज़ान में हद से तजावुज न करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो। निहायत रहने वाला है, वो जो निहायत मेहरबान है, उसी ने कुरान की तारीफ फरमाई। Vice Principal Dr. M.A. Bali sir, respected principals from all our sister concerns, teachers, non-teaching staff, proud graduates and dear students, a very good morning and warm welcome to one and all. You all have gathered here for Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University's Degree Distribution Ceremony 2023, the first ever of its kind being organized at college level. We take the opportunity to express our gratitude to the pillars of the campus, our visionary mentors, late Dr. Rafiq Zakaria sir and Padma Shri late Madam Fatma Rafiq Zakaria, for providing us all with a culture of inclusion, quality and excellence. It gives us great pleasure to welcome you all today in this auditorium where we are set to celebrate the achievements of our graduating students. These are the students who have successfully overcome the unprecedented challenges posed by COVID-19 pandemic. We appreciate the resilience with which you all have reached this milestone. You are sitting here today because of your hard work and dedication, and undoubtedly the support of your parents, family, colleagues, our teachers, and our staff. Let's take a moment to thank them and Maulana Azad College for standing by you in all your ups and downs. Our heartfelt congratulations to all the graduates on your wonderful accomplishments. Okay, sir. Naseem Kudasa, from the Jamia Millia Islamia University, New Delhi, as the chief guest for this ceremony. Professor Naseem sir is associate with Department of Chemistry at Jamia Millia Islamia University, New Delhi since 2006. With a specialization in organic chemistry, sir has contributed extensively to the field of teaching and research in chemistry. He was a coveted recipient of CSIR fellowship and GATE fellowship as well. We sincerely welcome you, sir, and may we request Principal Dr. Madar Farooq sir to kindly felicitate the chief guest by offering him a short and college mantle, a special issue. Of various institutes who are present here, our dear colleagues and my dear students. First of all, I congratulate all the graduating students for achieving their whatever highest goal is there. I am very much thankful to Professor Naseemullah Sahab. He accepted our invitation and came over here from New Delhi. And
not only he came, he visited our campus, he visited Mazar and all these things, the Rosa and all other things. And then he came to my office and then he told me that, sir, you declared in your speech that the highest all-rounder student of your college should get 5,000 rupees as a prize here from my side. So that is the sentiment, that is the emotions of नसीमुद्दीन सराइकिया। यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने देखा और ये देखा कि बहुत सारे बच्चियाँ उनके के अंदर अभी एजुकेशन ले रही है। सर, ये सर, लेट मी करेक्ट इट, सर ने 10,000 रुपए का तो ये जो चीज सर ने की है, तो देखा कि किस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन का माहौल बना हुआ है और किस तरीके से बच्चियां भी खास तौर पर पढ़ रही है और कैंपस पूरा स्टूडेंट से भरा पड़ा है। जो उनके ऑब्जर्वेशन थे उस हिसाब से जो उन्होंने कहा, तो ये उनके इमोशन थे जो यहाँ पर आने के बाद में वो जिससे यहाँ पर उन्होंने जाहिर किया है। तो मैं यहाँ पर जो है तो सर का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस तरीके से हमको सराहा है और ये भी कहा है कि किस तरीके से जामिया मिलिया इस्लामिया का और अपने कॉलेज का कुछ कोलैबोरेशन हो सकता है या एमओयू हो सकता है, रिसर्च के एतबार से, स्टूडेंट एक्सचेंज के एतबार से या टीचर, so that he will talk to the his higher authorities there and then it will be one of these. तो ये दो चीजें बहुत अच्छे हमारे लिए यहाँ पर जो तो हुई है इस मौके पर। ग्रेजुएशन डे एट कॉलेज लेवल, ये यूनिवर्सिटी ने तय की थी कि कॉलेज के ऊपर इस टाइप से ग्रेजुएशन डे मनाया जाएगा और इसका एक सर्कुलर निकला था 2019 के अंदर। लेकिन बाद में चूंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से पूरे फंक्शंस को मुलतवी कर दिया गया था, तो वैसे ही इससे भी जो है तो मुलतवी कर दिया गया था यूनिवर्सिटी की तरफ से। और फिर जो है तो लास्ट मंथ में एक सर्कुलर जारी हुआ यूनिवर्सिटी की तरफ से कि जो हमने रोक दिया था अभी उसे जारी ये कीजिए और आप ग्रेजुएशन डे मनाइए। मुझे खुशी हो रही है इस बात से कि हमारे इस कॉलेज से आज के दिन 750 लोगों को डिग्रियां मिलेगी। तो ये जो 750 है, सभी को यहाँ पर डिग्रियां देना मुमकिन नहीं होता है, इसलिए हमने सेलेक्टेड टॉपर्स जो है उसके अंदर हमने उनको बुलाया है और उनको सेलेक्टेड वालों को इस हॉल के अंदर दिया जाएगा और रिमेनिंग को हम काउंटर के ऊपर जो तो डिग्री जो तो तकसीम कर लेंगे। सेकंड चीज मुझे और एक खुशी यहाँ पर ये हो रही है कि हमने जो यूनिवर्सिटी का सर्कुलर बारीकी से जब देखा तो उसके अंदर ये बताया गया कि अगर यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर यूनिवर्सिटी फाउंडेशन डे पर उन्हें कुछ इनामत दिए गए हर एक कॉलेज के, यानी हर सब्जेक्ट के टॉपर्स को, उसमें अगर आपके कॉलेज के टॉपर्स भी अगर हो तो दोबारा आप यहाँ पर उनको सर्टिफिकेट दे सकते हैं। तो तब हमने देखा और हमने सेलेक्ट किया, निकाला, यूनिवर्सिटी से लिस्ट मंगवाई, तो उसमें हमारे कॉलेज के 18 स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी में अलग अलग मजमून में अलग अलग कोर्सेज में टॉप किए, तो जिन्हें आज उनमें से जो लोग आ सके हैं, क्योंकि जब डिग्री लेकर कंप्लीट हो गई है बच्चों की, यानी रिजल्ट लगने के बाद में बहुत सारे लोग जॉब के लिए या कोई लोग जो है तो अपने अपने हायर एजुकेशन के लिए अलग अलग जगह गए, तो जो मुमकिन है जितने कंफर्म किया था उन लोगों को हम यहाँ पर उनमें से बुलाकर या डिग्रियां जो है तो देंगे। तो इस तरीके से ये टोटल हमारे डिग्री कॉन्वोकेशन का एक स्वरूप जिसे कहा जाएगा, इसे कॉन्वोकेशन नहीं कहा जाता है क्योंकि कॉन्वोकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पे हो गया है, ये कॉलेज लेवल के ऊपर ग्रेजुएशन डे है जिसे पदवी वितरण समारोह कहा जाएगा। मैं हमेशा बोलते आया हूँ कि मैं इल्म को जो दो तरीके से तकसीम करता हूँ, लोग जो है तो उसे अलग तरीके से तकसीम करते हैं, दीनी और असली, तो जो मेरे नजदीक वो गलत तकसीम होगी उसकी,
इल्म खाली दो तरीके से तकसीम किया जा सकता है, इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे। नाफे यानी वो जिससे मुनाफा मिलता हो, यानी जिससे हमें फायदा होता हो। और हम दुआओं में वही दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमें इल्म नाफे अता कर। फिर इसमें दोनों तरीके का इल्म आता है। बेहतरीन इल्म तो वो है जो दीन के लिए हासिल किया जाता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर वो इल्म भी बहुत अहमियत रखता है जो आपको अपने हलाल की रोजी कमाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने के लिए काम आता है। तो मैं यहाँ पर इन ग्रेजुएट बच्चों के लिए ये संदेश देना चाहूंगा आज के दिन कि हमारी दुआएं हमेशा ये रहे कि हमें इल्म नाफे हासिल करने के और मौका मिले, क्योंकि हमारा जो लाइफ यहाँ पर बतलाता है, यानी वे ऑफ लाइफ जिसे हमने तस्लीम किया है, मेजॉरिटी ऑफ देम, क्योंकि यहाँ पर वो मानने वाले हैं, तो वो ये बतलाता है कि आपका इल्म हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती। आपने ये देखा होगा कि 1400 साल पहले जब इल्म अलग ढंग से उतरा था, दीन इल्म जिसे कहा जाएगा, तो वो जो फर्स्ट लाइन के जो लोग थे जिन्होंने इल्म हासिल किया, ईमान कबूल किया, उनकी उम्रें जो है तो काफी थी। यानी ऐसा बोल सकते हैं कि वो बलागत की उम्र से आगे पहुंच चुके। कुछ लोग अजर उम्र के भी होंगे उसके अंदर जो सहाबा कराम थे, तो फर्स्ट लाइन के। ऐसा नहीं कि बच्चों के तरीके से अपन जो बोलते हैं कि नर्सरी में ही उनको इल्म देना चाहिए या उनको प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं, बल्कि बाद में जो रहेगा वो दायम और कायम रह सकता है। और इसलिए हमारे इल्म हासिल करने की कोई ये नहीं। जैसा कि हम परसों एक प्रिंसिपल्स मीट के अंदर गए थे, तो वहां पर ये बतलाया गया कि सबसे बेस्ट जो एजुकेशन सिस्टम है वो फिनलैंड की है। तो उसमें ये होता है कि प्राइमरी लेवल में उसमें उसके ऊपर बच्चे पे ज्यादा बोझ डाला ही नहीं जाता है पढ़ाई लिखाई का, उन्हें फ्रीली जो तो खेलने दिया जाता है, पढ़ने लिखने दिया जाता है, और बाद में जो तो एजुकेशन स्टार्ट होता है। बट आई मीन कि जो ग्रेजुएट हो गए हैं उनका अभी ग्रेजुएशन होना बोलते तालीम मुकम्मल नहीं हुई, बल्कि वो तालीम अभी शुरू हुई, ऐसा कंसीडर कीजिए और आगे तालीम हासिल कीजिए और जो मौके कॉलेज ने दिए हैं उन मौके का भी फायदा उठाइए। जैसा कि मैं यहाँ पर बताया हूँ, इसके पहले भी अपन एक मीटिंग लिए थे कि एमपीएससी, यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए अपन एक स्पेशल क्लास भी चला रहे हैं, जिसके अंदर जो है तो 14 तारीख लास्ट डेट है एमपीएससी की फॉर्म भरने के लिए। दोज हु आर ग्रेजुएट दे आर एलिजिबल फॉर दैट, तो ये वहां पर जो तो अपना फॉर्म फिलअप करके मुस्तकबिल के लिए एक जो तो हमको किस तरीके से जॉब मिल सकता है वो देख सकते हैं, उसके अंदर आगे बढ़ सकते हैं। स्किल डेवलपमेंट है, अदर चीजें है, ये सभी बातें हैं, रिसर्च है, आगे प्रोग्रेशन, स्टूडेंट प्रोग्रेशन, इसके अंदर आप ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लीजिए। ये आप लोगों को जो तो मैं अपील करते हुए मेरे 2 लफ्ज खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप लोग कैसे हैं? कैसा लग रहा है आज आपके ग्रेजुएशन डे पे? तो मुझे उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा, और देखते हैं हम लोग और चीज़ों के लिए टॉक अबाउट दिस एट द लेटर स्टेज, एंड आई विल मेक दिस स्पीच a bit shorter. First of all, I would like to thank Professor Mazhar Faruqi sahab for inviting me. It is a great honor to be here in front of you, and here I would like to start my speech with actually मज़हर फारूकी साहब। ये हमारे कलीग्स, स्टाफ मेंबर्स एंड students, it is a great moment for us. You are being graduated, and I don't know, it make me emotional, that's why words are not coming. I don't know what to do. So,
here I would like to just, I will be using few words before going into the end of the lecture. Congratulations to all of you, the graduating students. It is a prime moment for you, all of you. And few things I would mention about education. Education, why do we need education? Education, actually, we correlate education with employment and other things. But when we will deep digger, we will go inside. I request you to look into the bigger goal of education. Education actually is about liberation. It liberates you from the fear, it liberates you from the other worries of the world. And it gives you a power where it helps you to distinguish between right and wrong. What is right and what is wrong, it helps you, education helps you in all these things. Later on, I will request all of you to not to stop your education at this level, because this is a graduation day, an auspicious day for all of you. Here, when you look into the higher goal, I will request all of you, because you will never get a chance. If you will stop your education here and do some other work, you will not get a chance to continue your further education. Here I would like to correlate this with my experience. After doing my MSc, I got CSIR JRF and I joined IICT Hyderabad to do my research work. In between, I got a permanent faculty position somewhere. I left my PhD there and I joined my faculty position. I am still repenting why I left my PhD and I joined a faculty position somewhere. So I will request all of you, although you are being graduated today, but I will request all of you to continue your education. Do not stop it till your goal is achieved. You request you to achieve your goal. Focus on your goal, achieve it. And how you are going to plan in determining your goal, I will request you to discuss with your dear and dear who are learned, your teachers, and of course your principal, Faruqi Saab. So these things are there. Above all, if we are talking about education, this is the thing. Actually, जब आपने ये सुना होगा कि कहा जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, फिर पूछा गया कि कहाँ है जन्नत, तो माँ के कदमों के नीचे, फिर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। तो इसी तरह से अगर आपको कुछ करना है, अपनी पहचान बनानी है, इफ़ यू वांट टू हैव योर इंटेलेक्चुअल फुटप्रिंट इन लाइफ, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन एजुकेशन, focus on education, not on money making. Money making will come afterward. Just focus on education. तो ये है, इसके साथ मैं फिर I would just like to conclude because I am not good in giving speeches. बस I want to conclude it, and again I would like to congratulate all of you. Not only all of you, I would also congratulate your mentors, your teachers who has helped, who has worked tirelessly to make it possible. Thank you, and this is good wishes to all of you for your future endeavors. Sir. Now the subject 342 marks out of 400. Next subject topper of chemistry 400 marks.
Siddiqui Irfan Ahmed. Siddiqui Irfan. Srinivas Bharat Jadhav. For MSc Computer Science, Khan Rahim. Now the students from graduation BS. Ms. Nimore Tejaswini. Ms. Nimore Tejaswini. Ms. Uma Parki. Ms. Devkar Ashwini. BSc Biotechnology. Khan Saida Abdul Majid Khan. Pardeshi Yes. Siddiqui Mehwish Fatima. Siddiqui Mehwish Fatima. Now, College Doctor for under the Faculty of Humanities, Sheikh Mohtashim. Now the College Doctor under the Faculty of Commerce and Engineering, Ajmera Divya. ये मौलाना आज़ाद कॉलेज के ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स को, ख़ास तौर से यहाँ के लीडर्स, यहाँ के प्रोफेसर्स मजहर फारूकी साहब और जो दूसरे असातिज़ा हैं, जो टीचर्स हैं, मैं उन लोगों के मेहनत की, शिद्दत से मेहनत करने की उनको मुबारकबाद देता हूँ। और एक्चुअली जो सक्सेस यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनके पीछे का जो हार्ड वर्क है उनको हम लोग नहीं देख पाते हैं। हमने यहाँ देखा है कि यहाँ हर चीज़ें ऑर्डर में हैं। मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि मौलाना आज़ाद कॉलेज या रफ़ीक ज़करिया फाउंडेशन इतना वाइब्रेंट होगा और इतने सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा होगा। तो अल्लाह इनको दिन ब दिन और तरक्की दे, यहाँ के स्टूडेंट्स दुनिया में बिखरें और बेहतरीन पोजीशन वो वहाँ अपना पोजीशंस और मकाम हासिल करें। सर, एक मुद्दत के बाद हमारे मुल्क में नई तालीमी पॉलिसी लाई गई है, तो इस ताल्लुक़ से आपके तासुरात क्या हैं और इसमें जो है तो क्या एक्चुअली नई एजुकेशन पॉलिसी पे मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को नहीं देखा है, इसलिए अभी मेरा उस पर कमेंट करना मुनासिब नहीं होगा। जब मैं उनको देख लूँगा उसके बाद उस पर मैं बात करना पसंद, चूँकि अभी मैं जाऊँगा तो चूँकि जस्ट अभी ये चीज़ें इस पे मंजर आम पे आ रही हैं, तो आई विल लुक इनटू इट एंड वंस वी विल गेट अपॉर्चुनिटी आई विल इंटरैक्ट विथ यू। सर, किसी भी कौम की तरक्की का दारोमदार जी उसके नौजवानों की तालीम पर होता है, जी उस कौम के बच्चों की तालीम पर होता है। तो आप हमारे माध्यम से औरंगाबाद शहर के तलबा को और उनके सरपरस्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यहाँ ये एक तारीख़ी शहर है,
औरंगाबाद ने दुनिया को दिखाया है कि औरंगाबाद या यहाँ के लोग क्या हैं। तो जो हमारा माजी होता है और हमारी जो एक हिस्ट्री है, हमें उनसे सीखना है और भी ज़्यादा नाम पैदा करना है औरंगाबाद का, महाराष्ट्र का और इंडिया का। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रिंसिपल मज़हर अहमद फ़ारूक़ी, मौलाना आज़ाद कॉलेज औरंगाबाद। आज हमारे इस कैंपस के अंदर ग्रेजुएशन डे मनाया गया और ये ग्रेजुएशन डे यूनिवर्सिटी के जो हिदायतों के मुताबिक जो उन्होंने जारी की है, और पहला ही इस तरीके का ये मौका था कि डिग्री जो है तो कॉलेज लेवल पर बाज़ाब्ता एक प्रोग्राम लेकर जो है तो यहाँ पर तकसीम की गई। इसके अंदर हमने जामिया मिलिया इस्लामिया से प्रोफेसर नसीमुल हुदा साहब को बुलाया था और इनके हाथों जो कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्होंने टॉप किया है, यानी कॉलेज के वो स्टूडेंट जिन्होंने यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी के लिस्ट के अंदर अपना मकाम हासिल किया है, तो उन लोगों को जो है तो डिग्रियां तकसीम की गई उनके हाथों, और दीगर स्टूडेंट्स को भी जो है तो हम यहाँ पर डिग्रियां आज दे रहे हैं। अलबत्ता यहाँ पर एक चीज़ मैं ये बतला दूँ कि आज के दिन खुशी इस बात की है कि 750 स्टूडेंट्स इस कॉलेज के जो है तो डिग्री हासिल किए हैं आज, जिसमें यूनिवर्सिटी टॉपर्स भी है और मुख्तलिफ मज़ामीन के बच्चे शामिल हैं, मसलन BSc, BA, BCom, BCS, BCA और इसके अलावा MSc और MA, MCom के बच्चे यहाँ पर इसमें शामिल हैं। तो ये बड़ी खुशी का मौका है। इस मौके पर नसीमुल हुदा साहब जो जामिया से आए हैं, इन्होंने अपने तौर पर बच्चों का जो यहाँ पर देखा, यहाँ कि किस तरीके से बच्चों के अंदर एक तरीके की जोश व खरोश है और किस तरीके से बच्चे तालीम पा रहे हैं, बुरखे के अंदर भी यानी हिजाब के अंदर भी बच्चियाँ जो तो यहाँ पर तालीम ले रही है। ये तमाम चीज़ें देखते हुए उन्होंने अपने तौर पर जो है तो जो ऑलराउंड स्टूडेंट होगा तालीम के हिसाब से भी और बाकी के हिसाब से भी, उसको 10,000 का इनाम भी उन्होंने जो है तो यहाँ पर डिक्लेयर किया है। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जामिया का और आज़ाद कॉलेज का अगर कुछ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जिसके तहत यहाँ के स्टूडेंट वहाँ कुछ पढ़ाई के लिए या किसी स्टडी टूर के लिए जा सकते हो या वहाँ के स्टूडेंट यहाँ आते हो, तो इसके बारे में कुछ पेशकदमी वो करने जा रही हैं। सर, आज के आपके कॉन्वोकेशन या एजुकेशन डे के, ग्रेजुएशन डे के ऊपर ये महसूस किया गया कि हमेशा ही की तरह इस मर्तबा भी लड़कियों ने लड़कों पर बाजी मार ली है। जी, तो आप लड़कों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी हाँ, ये तो एक हमेशा जो देखे जा रही बात है अभी, और जनरल ये देखा गया है कि लड़कियां ज़्यादा मतलब अच्छी तरीके से पढ़ाई के अंदर आगे है बनिस्बत लड़कों के। तो इसके पीछे रीज़न कुछ भी है ये देखेंगे हम लोग भी, और देख रहे हैं उसके पीछे काम ये कर रहे हैं। लड़कों को मैं ये यहाँ पर एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि उन्होंने ये सोचना है आगे चल के कि मेरे ऊपर पूरी एक फैमिली डिपेंड होने वाली है या मैं एक फैमिली का मुखिया बनने जाऊँगा, तो तब मैं उस काबिल रहूँ कि मैं उसका एक पूरा माशी और बाकी की चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार रहूँ। और इसलिए जो है तो उन्होंने ज़्यादा कोशिशें करना चाहिए। हो ये रहा है कि लड़के हमारे दीगर बाकी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसके अंदर ज़्यादा मुलविस हो गए। तो लड़कों के लिए यही मैसेज है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और उन आगे बढ़ने की कोशिश करें और ये सोचे कि हम हमारे वालिदैन के ख्वाबों की यहाँ पर जो तो ताबीर करने के लिए आगे हम बढ़ रहे करके। सर, तालीम के मामले में तो काफ़ी पहलकदमी हो रही है, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये देखा गया है कि जैसे जो बाअखलाक इंसान बाहर आना चाहिए जी, या अखलाकी एतबार से अखलाकी क़दरें जो है तो गिरती जा रही हैं, तो इसके लिए क्या करना चाहिए, क्या पेशकदमी करेंगे? आपका सवाल बहुत अच्छा है। मैंने ये देखा है कि अखलाकी लिहाज से जो है तो बहुत सारे गिरावट हमारे इस समाज में स्टूडेंट्स में ख़ास करके, चाहे वो किसी भी इसका रहो, वो ये आई है। और एक चीज़ ये देखने में आई है कि जिस तरीके से पेंडेमिक ख़त्म हो गया है तो बच्चों के अंदर ये गैर अखलाकी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ गई है। तो इसके लिए हम टीचर के तौर पर, स्टूडेंट्स और कॉलेज हमारा बहुत सारी कोशिशें कर रहा है, बहुत सारे मोटिवेशन लेक्चर्स हमने अरेंज किए हैं
बहुत सारे आलिम दीन को उस लिहाज से जो जिनके दिल के अंदर थोड़ा बहुत दीन के ताल्लुक से रग़बत है, उन बच्चों को जो है तो उस तरीके से उभारने के लिए भी हमने कोशिश की है। और वैल्यू एजुकेशन कमेटी के ज़रिए भी हम जो है तो कोशिशें करते जा रहे हैं। लेकिन जितना हमारा रोल है, इससे कई ज़्यादा रोल वालिदैन का है या महल्ले के उन लोगों का है जो आप जिसे जो है तो कह सकते हैं कि बुज़ुर्ग हस्तियाँ समझा जाएगा कि इन्होंने जितना जो है तो ज़ोर देना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, वो थोड़ा सा कमी उसमें आ रही है। सर, आज बच्चों में खुद एतमादी भी कम होती दिखाई दे रही है, तो बच्चों की खुद एतमादी बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं? जी, बच्चों की खुद एतमादी के लिए हम उनको ये बतला रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ पर क्या होता है कि अगर बच्चे को ये लगता है कि डिग्री लेने के बाद में, हम ये तालीम हासिल करने के बाद में हमारे लिए क्या मौक़े है, जब बच्चा ये देखता है कि हमारे लिए मौक़े कम मिल रहे हैं तो वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, खुद एतमादी उसकी डावाडोल होने लगती है और वो जो है तो एक तरीके से डिप्रेशन में चला जाता है। और उसके वजह से और उसके जो दोस्त कंपनी है या दूसरे लोग हैं, बच्चे हैं, उनके ऊपर भी ये असर होने लगता है कि देखिए वो तो इतना पढ़ा लिखा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन तू क्या करेगा पढ़ लिख के, या इस टाइप की सोच डेवलप होती है। तो हम यहाँ पर ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे मौक़े हैं, इसलिए कैंपस इंटरव्यूज़ लिया जा रहा है, उनको कैंपस इंटरव्यू तैयार करने के लिए भी कोशिशें की जा रही है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उनको बैठने के लिए हम राग़िब कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट जो पैसे यहाँ पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की फ़ीस नहीं भर सकते, तो हम जो है तो कॉलेज की तरफ से उनकी फ़ीस भरने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए जो है तो फ्री कोचिंग क्लास भी देने की कोशिश कर रहे हैं। और बार बार उनको ये बतला रहे कि जहाँ पर हमको वो मौके है रोज़गार के जिसे हम आसानी से हासिल कर सकते हैं, बिना किसी यानी रिश्वत दिए के, बिना किसी और किसी तरीके से जो तो ये करने के, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत यहाँ पर जो तो या रंग ला सकती है। तो ये इस टाइप से अगर बताए तो उनका एतमाद बढ़ेगा और उनको रोज़गार के अच्छे मौके भी मिलेंगे। और इसके लिए हम और एक चीज़ ये करने जा रहे हैं कि जो सक्सेस स्टूडेंट्स हैं, जो सक्सेसफुली जाकर कहीं ना कोई बड़े पोजीशन पे चले गए हैं, ऐसे बहुत सारे इसको आज़ाद कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, 1963 से ये इदारा चल रहा है, तो बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं हम उन्हें मदऊ करेंगे और उनको लेक्चर्स और उनके जो तो मोटिवेशनल चीज़ें या उनके साथ इंटरेक्शन इन बच्चों का करने जा रहे हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।